نمازوں کا اہتمام ضروری ہے، آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ بعض لوگ بڑے ہو گئے ہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، سر کے بال پک چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ نمازی نہیں بن پائے ہیں۔ باپ بن گئے، چاچا بن گئے، دادا بن گئے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ابھی تک نمازی نہیں بن پائے۔ نماز کا اہتمام ضروری ہے۔ ذرا دیکھیے، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صاحب فراش ہیں، بستر پر لیٹے لیٹے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، اس کے باوجود آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں۔ کب تک گناہ کرتے رہیں گے؟ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ کب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ کب تک بے نمازی بن کر زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی کی نعمت سے نواز رکھا ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی زندگی کو بدلیے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، نمازی بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قابل قدر سامعین کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، نماز ایک عظیم الشان عبادت کا نام ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا اللہ کا محبوب اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نماز کا اہتمام کرنے والا گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کا اہتمام کرنے والا غموں سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، ایک عظیم الشان عبادت کا نام ہے۔ نماز فرض ہے اور فرض کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 43، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نمازوں کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو نمازی بن جانا چاہیے۔ کیا ہم اور آپ نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہماری اولاد نماز کا اہتمام کرتی ہے؟ کیا ہمارے گھر والے نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ خود بھی نماز پڑھیے اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے اور فرض کا ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بے شمار اور انگنت نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس لیے نواز رکھا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے لیے نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کریں۔ ہمیں اور آپ کو نمازی بن جانا چاہیے۔ نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، ہمیشہ وہ اول صف میں نظر آتے ہیں، پورا رمضان نماز پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہوئے ان کا رمضان گزرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے
फिर वो अपनी जिंदगी को बदल लेते हैं, वो मस्जिदों में नजर नहीं आते हैं। क्या सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ेंगे ये काफी है? ये काफी नहीं है। हमें और आपको हमेशा नमाजों का एहतमाम करने की जरूरत है। बाज लोग सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ते हैं। क्या सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ना काफी? अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नमाजों का एहतमाम करने का हुक्म दिया है। 5 वक्त की नमाज जरूरी है, अल्लाह ताला की इबादत जरूरी है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बेशुमार और अनगिनत नेमतों से नवाज रखा है। हम अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते हैं, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बेशुमार और अनगिनत नेमतों से इसलिए नवाज रखा है ताकि हम अल्लाह की बात माने, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की इताअत करें। नमाज का एहतमाम जरूरी है। जरा देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो बैठ कर नमाज पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो साहिब फिराश हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाज रखा है, इसके बावजूद आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसके बावजूद आप अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं, इसके बावजूद आप अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी नहीं करते हैं। कब तक गुनाह करते रहेंगे? नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है। कब तक अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहेंगे? कब तक बेनमाजी बनकर जिंदगी गुजारते रहेंगे? अल्लाह की नेमतों की कदर कीजिए। अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत से नवाज रखा है, फिर भी आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये सही बात नहीं हो सकती है। आप अपनी जिंदगी को बदलिए, गुनाहों से अपने आप को बचाइए, नमाजी बन जाइए। अल्लाह ताला ने नमाज को फर्ज करार दिया है, नमाजों का एहतमाम जरूरी है। आज ही से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। बाज लोग बड़े हो गए हैं, इसके बावजूद वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। सर के बाल पक चुके हैं, हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, फिर भी वो नमाजी नहीं बन पाए। बाप बन गए, चाचा बन गए, दादा बन गए। दुख की बात यह है कि अभी तक नमाजी नहीं बन पाए। हमें और आपको नमाजी बन जाना चाहिए। बाज माँ बहनें सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ती हैं और दीगर महीनों में वो नमाज छोड़ देती हैं। रमजान के महीने में वो कुरान पढ़ती हैं, नमाज पढ़ती हैं, और दीगर महीनों में वो नमाज तर्क कर देती हैं। ये सही तरीका नहीं है। नेक खातून की ये पहचान है, नेक औरत की ये पहचान है। वो अल्लाह के लिए नमाज पढ़ती है, अल्लाह के लिए कुरान पढ़ती है, अल्लाह के लिए वो नेक अमाल करती है। हमें और आपको नमाजी बन जाना चाहिए। अल्लाह ने नमाज को फर्ज करार दिया है, ये बात हमें और आपको याद रखने की जरूरत है। औलाद को नमाजी बनाने की फिक्र कीजिए। बाज माँ बाप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, भला वो अपनी औलाद को नमाज का हुक्म कैसे दे सकते हैं? अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं, क्या आप अपनी औलाद को नमाजी बनाने के बारे में फिक्र कर सकते हैं? बाज लोग खुद नमाज पढ़ते हैं और उनकी औलाद भी नमाजी है, लेकिन वो अपनी औलाद को नमाजी बनाने की फिक्र नहीं करते हैं। वो अपने घर वालों को नमाज का हुक्म नहीं देते हैं। आप उन्हें नमाज का हुक्म दीजिए, अपनी औलाद को नमाजी बनाने की फिक्र कीजिए, आप उन्हें नेक बनाने की कोशिश कीजिए। जब बच्चे नेक बन जाएंगे, जब बच्चे अच्छे बन जाएंगे, यकीन मानिए यही बच्चे आपके हुकूक अदा करेंगे। जब औलाद नेक बन जाएगी, जब औलाद सालिह बन जाएगी, औलाद आपके हक को अदा करेगी और आपकी खिदमत भी करेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम खुद भी नमाज पढ़ें और अपनी औलाद को नमाजी बनाने की कोशिश करें और उन्हें बचपन से नमाजी बनाने की कोशिश करें। बड़ा होगा नमाजी बन जाएगा, इस सोच में ना रहें, बल्कि आप बचपन ही से उन्हें नमाज का हुक्म दें। आप उन्हें नमाजी बनाने की कोशिश कीजिए। जब उनकी उम्र 7 साल हो जाए, आप उन्हें नमाज का हुक्म दीजिए। आप उन्हें नमाजी बनाने के बारे में सोचिए। आप उनको अपने साथ लेकर नमाज के लिए निकलिए। अगर आप खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे, भला आप अपनी औलाद के लिए क्या फिक्र कर सकते हैं? आप अपनी औलाद को कैसे नमाजी बना सकते हैं? इसलिए खुद नमाजी बन जाइए और अपनी औलाद को नमाजी बनाने की कोशिश कीजिए। नमाज इस्लाम का एक रुकन है। नमाज का एहतमाम करने वाला अल्लाह का महबूब और मुकर्रब बंदा बन जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताबुल ईमान किताब नंबर 2 हदीस नंबर 8, बुनियल इस्लाम अला खमसिन शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़का वल हज व सौम रमजाना। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है। इस बात की गवाही देना अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं।
नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, बैतुल्लाह का हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज करार दिया है, इसलिए हमें और आपको नमाजी बन जाना चाहिए। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। क्या हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं? हमें और आपको ये देखने की जरूरत है। हम अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें और आपको बेशुमार और अनगिनत नेमतों से नवाज रखा है। हम अल्लाह की दी हुई नेमतों से फायदा उठा रहे हैं। क्या हम अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाने के बाद अल्लाह की बात मानते हैं? जब दुनिया में कोई भलाई कर देता है, मुसीबत के वक्त काम आ जाता है, परेशानी के वक्त जब कोई सामने आकर खड़ा हो जाता है, हम उसे नहीं भूलते हैं, हम उसको याद रखने की कोशिश करते हैं। जरा बताएं, जिस अल्लाह ने बेशुमार और अनगिनत नेमतों से नवाज रखा है, क्या उस अल्लाह ताला के लिए इबादत करना, क्या उस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ना, क्या उस अल्लाह की बात मानना हमारे लिए जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। अपने आप को नमाजी बना लीजिए। जो आदमी अल्लाह की इबादत करता है वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है और वो आज़ाब जहन्नम से बच जाता है। अल्लाह ताला की बात मानेंगे, नमाज का एहतमाम करेंगे, फायदे में रहेंगे। अल्लाह ताला की इबादत करने वाला जहन्नम की दहकती हुई आग से बच जाता है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 दर्जा ज्यादा गर्म है। अल्लाह के आदाब से डर जाइए और अपने आप को नमाजी बना लीजिए। जो आदमी अल्लाह की इबादत करता है वो जहन्नम की आग से बच जाता है। अल्लाह का इरशाद है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 21, या अय्युहन नासु उब्दु रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। अल्लाह की इबादत करके हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हैं। नमाज एक अजीम शान इबादत का नाम है। नमाज का एहतमाम करना बहुत जरूरी है। नमाज का एहतमाम करने वाला हमेशा फायदे में रहता है। नमाज का एहतमाम करने वाला गुनाहों से बच जाता है। नमाज का एहतमाम करने वाला खराब कामों से बच जाता है। नमाज का एहतमाम करने वाला बुराई और बेहयाई के कामों से अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। जब आप नमाज का एहतमाम करेंगे आप गुनाहों से बच जाएंगे। जो आदमी अल्लाह के लिए नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो गुनाहों को मिटा देती है। नमाज का एहतमाम करने वाला गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। नमाज का एहतमाम करने वाला अपनी जिंदगी को बेहतर बना लेता है। नमाज का एहतमाम करने वाला गमों से नजात हासिल कर लेता है। नमाज का एहतमाम करने वाला गमों से छुटकारा हासिल कर लेता है। बहुत सारे लोग गमों से नजात हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और गमों से नजात हासिल करने की बहुत ज्यादा कोशिश भी करते हैं, लेकिन गम कम होने के बजाय और ज्यादा हो जाता है। क्या आप हमेशा गमगीन रहते हैं? क्या आप उदास रहते हैं? आप गमों से नजात हासिल करना चाहते हैं? आप नमाजी बन जाइए, आप गमों से नजात हासिल कर सकते हैं। नमाज एक ऐसी इबादत है जिसका एहतमाम करके आदमी अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। आदमी गमों से नजात हासिल कर सकता है। आदमी हुज्न मलाल से छुटकारा हासिल कर सकता है। नमाज का एहतमाम करने वाला हमेशा फायदे में रहता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया है, सुनन अबी दाऊद की हदीस है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहम मामला पेश आता आप नमाज का एहतमाम करते हैं। नमाज का एहतमाम करके हम अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। आप नमाजी बन जाइए, आप नमाज का एहतमाम कीजिए, आप गमों से नजात हासिल कर लेंगे। नमाज छोड़ने वाला नुकसान में रहता है। बहुत सारे लोग क़यामत के दिन नमाज छोड़ने की वजह से जन्नत से दूर हो जाएंगे, जन्नत से मारूम हो जाएंगे। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जन्नती लोग जहन्नमियों से सवाल करेंगे, आप जहन्नम में क्यों चले गए? आपका ठिकाना जहन्नम क्यों बन गया? आप जहन्नम में क्यों दाखिल हो गए? वो कहेंगे हम नमाज का एहतमाम नहीं करते थे। सूरह मुद्दस्सिर सूरह नंबर 74 आयत नंबर 42-43, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आप जहन्नम में क्यों चले गए? आपका ठिकाना जहन्नम क्यों बन गया? वो कहेंगे हम नमाजी नहीं थे। इसलिए नमाज का एहतमाम जरूरी है। खुशू और खुजू के साथ जो नमाज का एहतमाम करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। हमें और आपको नमाजी बन जाना चाहिए।
नमाज का एहतमाम कीजिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बना लीजिए। मैंने आप लोगों के सामने चंद बातों का तज़किरा किया। मैंने कहा हमें नमाजी बन जाना चाहिए। नमाजी बन जाइए, खुद भी नमाज पढ़िए और अपनी औलाद को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, उन्हें भी नमाजी बनाने की फिक्र कीजिए। नमाज का एहतमाम जरूरी है। जो आदमी अल्लाह ताला को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए नमाजों का एहतमाम करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी को बेहतर बना देता है। आखिर में अल्लाह से दुआ है, या इलाल आलमीन, तू हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को दरगुजर कर दे, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। हम तमाम लोगों को तू नमाजी बना दे, हमारे घर वालों को नमाजी बना दे, हमारी औलाद को नमाजी बना दे, हमें कसरत से नेक आमाल की तौफीक अता फरमा दे और हर तरह के गुनाह के कामों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। शैतान के शर और फितनों से बचा ले और जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। जो लोग तंग दस्त हैं उन्हें मालामाल कर दे। जो लोग बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमा। आमीन।